Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Praise the Lord. So whatever the Lord has put in my heart, जो भी प्रभु ने मेरे हृदय में डाला है I'll share today. मैं आपसे बांटूंगी। Are you ready to receive? क्या आप ग्रहण करने के लिए तैयार हैं? Amen. Amen. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Amen. Let's go to Amen. James 4, chapter 4. याकूब चौथा अध्याय में चलेंगे। James chapter 4, याकूब चौथा अध्याय verse 10. 10वीं आयत। It says, humble yourself in the presence of the Lord. प्रभु के सामने, अंग्रेजी के अनुसार प्रभु की उपस्थिति के सामने दीन रहो। Amen. And he will exalt you. तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा, वह तुम्हें उठाएगा, ऊंचा Amen. करेगा। It says, humble yourself वो कहता है कि अपने आप को दीन करो in the presence of the Lord. प्रभु की उपस्थिति में। Not only in the church, केवल चर्च में ही नहीं not only in the prayer closet. और सिर्फ प्रार्थना की कोठरी में ही नहीं। Amen. आमीन। But in the presence of the Lord. प्रभु की उपस्थिति में। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। In your presence there is fullness of joy. तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Where is his presence? उसकी उपस्थिति कहाँ है? In your heart. आपके हृदय में। Every day. हर दिन, Every time. हर समय। Amen. आमीन। Wherever you are. जहाँ भी आप हो, Whatever you do. जो भी आप करते हो, You carry the presence of the Lord. आप प्रभु की उपस्थिति को लेके चलते हैं। Amen. आमीन। And the word of God says, प्रभु का वचन कहता है, humble yourself. अपने आप को दीन करो। Amen. आमीन। Humble yourself अपने आप को दीन करो in the presence of the Lord. प्रभु की उपस्थिति में। And who will exalt you? He will exalt you. कौन ऊंचा उठाएगा? वह ऊंचा उठाएगा। Amen. आमीन। He will exalt you. वह आपको ऊंचा उठाएगा। Whether you are in the school, चाहे आप स्कूल में हैं, whether you are in the college, चाहे आप कॉलेज में हैं, whether you are in the job, चाहे आप किसी नौकरी में हैं, whether you are in the चाहे ministry, आप सेवकाई में हैं, whether you are in the business, चाहे आप व्यापार में हैं, whatever area you are in, आप किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, whether you are in family, चाहे आप परिवार में हो, whether you are a parent, चाहे आप माँ बाप हो, whoever you are, जो कुछ भी आप हो, he is going to exalt you. वह आपको उठाएगा। Amen. आमीन। Whom God exalts, no one can pull them जिसको down. परमेश्वर ऊंचे में उठाता है, उसको कोई भी नीचे खींच नहीं सकता। Amen. आमीन। That's why we need to humble इसीलिए हमें अपने आप को दीन करना होगा in the presence. प्रभु की। It doesn't say in front of people. ऐसा नहीं कहता कि लोगों के सामने, It doesn't say that only in front of your boss. और ऐसा नहीं कहता कि केवल अपने बॉस के सामने ही, It doesn't say in front of your leaders. और वो ऐसा नहीं कहता कि केवल अपने अगुओं के सामने। It says in the presence of the Lord. वो कहता है कि प्रभु की And उपस्थिति you में carry the presence of the Lord every second of your breath. आप अपने जीवन के सांस के हर सेकंड प्रभु की उपस्थिति को लेके चलते हैं। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. God is inside of you. परमेश्वर आपके भीतर है। Holy Spirit dwells in you. पवित्र आत्मा आपके अंदर वास Whether करता you है। feel it or you चाहे- don't feel it. चाहे आप इसको महसूस करते He भी is हैं, चाहे there. नहीं भी है, वे वहां है। Amen. Amen. He is there inside वो of you. आपके वहां अंदर है, And He's dwelling in वो you. आपके अंदर वास His करता है, presence वो is आप- there. उसकी उपस्थिति वहां है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। And He's demanding. वो मांग करता है। Amen. The word of God is demanding परमेश्वर का वचन मांग करता है to humble. कि आप दीन हो।
Amen. Amen. Humble yourself दीन हो in the स्वयं presence of the Lord, प्रभु की and उपस्थिति He में will exalt you. और वह तुम्हें ऊंचे में उठाएगा। In one version, it says, एक अनुवाद इस प्रकार से भी कहता है, He will honor you. वो आपका आदर करेगा। Not only exalt you, कभी सिर्फ वो आपको ऊंचा ही नहीं but उठाएगा, He will honor you. वो आदर भी दिलाएगा आपको। In another version, it says, दूसरा अनुवाद कहता है, He will position you. वो आपको Position. पोजीशन, वो आपको पदवी देगा। Who's going to give you position? कौन आपको जो है पदवी देगा? God. परमेश्वर। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. No man, कोई मनुष्य नहीं, no human being, कोई भी मनुष्य नहीं, but positions come from the Lord. पर जो पदवी है वो प्रभु की ओर से आती है। Honor comes from the आदर Lord. प्रभु की ओर से आता है। Exaltation comes from the उठाया Lord. जाना प्रभु से आता है। One version says, एक अनुवाद ऐसा He कहता है, will give you purpose. वह आपको उद्देश्य देगा। He'll give you purpose. उद्देश्य देगा आपको, Not your own purpose. आपका अपना उद्देश्य नहीं, Not the worldly purpose, संसारिक उद्देश्य नहीं, but the godly purpose. ईश्वरीय उद्देश्य, Anointed purpose. अभिषिक्त उद्देश्य, Divine purpose. अलौकिक उद्देश्य। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। And that purpose no one can snatch और out वो उद्देश्य कोई भी छीन नहीं सकेगा from your life. आपके जीवन से। Amen. आमेन। No one can snatch out. कोई भी उसको छीन नहीं सकेगा। Amen. आमेन। From the plan of God, प्रभु की योजनाओं से, the purpose of God, परमेश्वर की योजना उद्देश्य से nobody can snatch you कोई out. भी आपसे छीन नहीं सकता। It is there, वे वहां है, deposited डाली गई है in the presence of the प्रभु Lord. की उपस्थिति में। It only ये demands वही केवल मांग करता that है you humble कि आप yourself. अपने आप को दीन करो। He will lift you वो up. आपको ऊंचा उठाएगा। Amen. आमेन। He will lift you. वो आपको ऊंचा And when उठाएगा। God lifts you up, जब परमेश्वर आपको ऊंचा उठाता है, no man can bring you down. कोई मनुष्य आपको नीचे नहीं गिरा सकता। Amen. आमेन। No power can bring you कोई down. भी सामर्थ आपको नीचे No नहीं गिरा सकता। darkness can bring you कोई भी down. अंधकार आपको नीचे नहीं No खींच Satan सकता। can bring you कोई down. शैतान आपको नीचे नहीं No गिरा सकता। world can कोई भी bring you संसार down. आपको नीचे नहीं गिरा सकता। You are established there. आप वहां स्थापित होंगे। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। 1 Peter 5:6 says, पहला पत्रस 5:6 कहती है, if you go with me to 1 Peter, यदि आप मेरे साथ जाएंगे पहला पत्रस में, chapter 5, verse 6. Okay. It says, therefore, humble yourself under the mighty hand of God. इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। Amen. Amen. It says, humble yourself वो कहता है, आपको दीन करो under the mighty hand of God. परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे। It is better to be under the mighty hand of God. और उत्तम होगा कि आप परमेश्वर के सामर्थी हाथ के नीचे रहे। Amen. आमेन। It is very important ये बहुत ही महत्वपूर्ण and है, it is good ये बहुत अच्छा है to be under the mighty hand of God. कि परमेश्वर के सामर्थी हाथ के नीचे रहे। You are safe there. आप वहां सुरक्षित है, You are provided there. आपके लिए वहां प्रयोजन You किया are गया, protected there. आप वहां सुरक्षित है, You are in peace आप there. शांति में है वहां। Amen. आमेन। You are prosperous there. आप वहां संपन्न है। But if you don't humble, यदि आप दीन नहीं करेंगे, the Bible बाइबल says कहती है, it's better to humble under the hand of God वो कहता है कि बेहतर है कि आप परमेश्वर के हाथों के नीचे अपने आप को दीन कर दें। If you don't, यदि आप नहीं करेंगे, there's one verse I'm coming in my mind. It's not very clear. एक It says, better you humble, or if he falls, you fall on your knees. If he make you fall, or he falls on you,
you will be nowhere. और बेहतर है कि आप अपने आप को दीन कर दीजिए। यदि आप गिर जाएं या आपके ऊपर वो गिरे तो आप कहीं के काम के नहीं रहेंगे, किसी काम के नहीं It's रहेंगे। better you fall on your बेहतर है कि knees. आप अपने घुटनों में आ जाएं। Amen. आमीन। If he falls on you, you will become dust. और यदि वे आप पर गिरे, आप धूल बन जाएंगे। One blow. एक ही सांस से। Amen. आमीन। It says, humble yourself कहता है कि आप अपने आप को दीन करें under the mighty hand of God. परमेश्वर के सामर्थी हाथों के नीचे। Amen. आमीन। That he may exalt you at the proper time. जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए, Amen. ऊंचा उठाए। He will exalt you. He will honor you. He will give you purpose. वह आपको जो है ऊंचा उठाएगा, वह आपको जो है उद्देश्य देगा। Amen. Amen. He will position वो you आपको पदवी देगा in the proper time. सही समय में, उचित You समय में। wait for his time. आप उसके समय का इंतजार करें। As you're waiting, जैसे आप इंतजार कर as रहे हैं, you're waiting, जैसे आप इंतजार कर रहे just हैं, humble yourself अपने under आप को- the hand of God. परमेश्वर के हाथों के नीचे अपने आप को दीन करें। Amen. Under the Amen. mighty hand of God. परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे Wait patiently. धीरज से इंतजार कीजिए, बाट जोएं। Do not force your own way. अपने ही राहों को जबरदस्ती ना लेके Do आए। not force your own plan. अपनी ही योजनाओं को लाने की कोशिश ना Do करें। not force your own purpose. अपने ही उद्देश्य को लाने का बल ना दे। Do not force yourself अपने आप को आगे धकेलने का बल ना दे। for that honor, उस आदर के लिए, for that position, उस पदवी के लिए, for that purpose. उस उद्देश्य के लिए। Let God do it होने दीजिए, परमेश्वर ऐसा करे in its time, अपने समय में, in his proper अपने time. सही समय में। The Bible says, बाइबल ऐसा He कहती will है, exalt you, वह तुम्हें He ऊंचा will उठाएगा, honor वह आदर you, देगा, He will position वो you, आपको पदवी देगा, He will lift you, वो आपको ऊंचा He'll उठाएगा, give you वह आपको purpose उद्देश्य in देगा the proper time. सही समय में। When he thinks, yes, this is the right time. और जब वह सोचता है, कहता कि हाँ यही सही समय है। Amen. आमीन। 2 Chronicles 7. दूसरा इतिहास 7वां अध्याय। Let's go to 2 Chronicle. आइए चलेंगे दूसरा इतिहास में। There will be situations and circumstances ऐसे हालात या परिस्थिति हो सकती हैं that will demand you to come out under the hand of God. और जो आपसे मांग करेगी कि आप परमेश्वर के हाथ के नीचे आ जाएं, To come out of the hand of God. कि आप परमेश्वर के हाथ से बाहर आ जाएं। ऐसी परिस्थिति आपसे मांग कर Maybe सकती है। sometime your flesh, हो सकता है आपका maybe sometime शरीर, your mind, आपका मन या emotions भावनाएं भी will demand. आपसे मांग कर सकती है। But that is the time पर वो ही समय है, to humble yourself अपने आप को दीन करें under the hand of God, परमेश्वर के हाथों के नीचे, in the presence of the Lord. प्रभु की उपस्थिति में। Chapter 7, verse 14. 7वां अध्याय उसकी 14 आयत। Are you here with me? क्या आप मेरे साथ हैं यहाँ? I know it's not very exciting message, मैं जानती हूँ कि ये बड़ा ही उत्साह देने वाला संदेश नहीं है, but yes, it's going to make you rooted and grounded more and more. पर ये आपको सचमुच और ज्यादा वचनों में आपकी मदद करेगा, जड़ पकड़ने में और ज्यादा नींव डालने में, In his blessing अपनी आशीषों में, उसकी in- आशीषों में and in his love. और उसके प्रेम में। Amen. आमीन। Hallelujah. In his Hallelujah. presence. उसकी उपस्थिति में। Verse 14 says, 14वीं आयत कहती है, And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. और तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें तो और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। Amen. Amen. It says, my people, वो कहता है कि मेरी प्रजा या my मेरे लोग, blood washed people. मेरे लहू के द्वारा धुले हुए लोग। Amen. आमीन। If my people यदि मेरे लोग
who are called by my name. जो मेरे नाम के कहलाते हैं. Amen. आमीन. Called by my name, मेरे नाम के द्वारा बुलाए गए हैं. humble themselves अपने आप को दीन करे and pray और प्रार्थना करे and seek the face of God. और परमेश्वर के दर्शन के खोजी हों. Face of God. परमेश्वर के चेहरे के खोजी. It did not right hand of God, और ये ऐसा नहीं कि यहाँ दाहिना हाथ, or it did not write the legs of God, और ऐसा भी feet of नहीं God. लिखा कि परमेश्वर के पांव को खोजें. right? But it is specific. ये साफ साफ लिखा गया है. Face of God. अंग्रेजी के अनुवाद के अनुसार परमेश्वर के चेहरे को खोजें. चेहरे को खोजें. Very specific. खास तौर पर लिखा गया है. If they seek the face of God यदि वे परमेश्वर के चेहरे को खोजें and turn from their wicked और अपनी ways. बुरे चाल से फिरें. See, we need to recognize and acknowledge our wicked ways. देखिए, हमें अपनी बुरी चाल या दुष्ट Amen. मार्गों को समझना होगा, पहचानना होगा. Amen? आमीन. Before anybody else can recognize. इससे पहले कि कोई और इसको पहचाने, It's better that you and I recognize बेहतर है कि आप और मैं इसको पहचान ले and turn from that wicked और ways. उन बुरे दुष्ट मार्गों से फिरे. Then I will hear from heaven तब मैं स्वर्ग से सुनकर and will forgive their उनका sins पाप क्षमा करूंगा and heal their land. और उनके देश को ज्यों का त्यों कर Because दूंगा. of you, तेरे कारण, your land is going to be healed. तेरे कारण तेरी Amen. जमीन चंगी हो The जाएगी. land is going to be healed तेरा देश ज्यों का त्यों हो जाएगा. because of you. तेरे कारण चंगा Your हो. family is blessed तेरा परिवार आशीष पाएगा, and healed चंगा हो जाएगा because of you. तेरे कारण. Your generation is blessed तुम्हारी पीढ़ियां भी आशीषित होंगी and healed और चंगी होगी because of you. तेरे कारण, Because you have humbled yourself. क्योंकि तुमने अपने आप को दीन किया है. Amen. आमीन. And prayed and sought his और face. प्रार्थना की है और उसके चेहरे को खोजा है. Amen. आमीन. Hallelujah. हालेलुया. Just because of your humbleness, तेरे दीन होने के कारण ही, your repentance, आपके मन फिर आपके कारण ही your land is healed. आपकी जमीन जो Your है, family is देश चंगा, blessed. आपका परिवार आशीष पाया. Amen. आमीन. Your children's children आपके बच्चों के बच्चे भी are healed चंगे हुए and provided और उनके लिए and प्रयोजन हुआ, protected. सुरक्षा मिली. Amen. आमीन. From heaven. स्वर्ग से. He says, I will hear from heaven. और उसने कहा कि मैं स्वर्ग से सुनूंगा. Amen. आमीन. Hallelujah. हालेलुया. It's only you need to humble आपको केवल दीन होना and होगा turn and repent. और मन फिराना होगा. That's मुड़ना it. होगा, मन फिराना होगा. That's it. बस इतना ही. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. And he's going to hear you. वो आपकी सुनेगा. Proverbs 22:4. नीति वचन 22:4. Hallelujah. हालेलुया. The reward of humility and the fear of the Lord जो प्रभु के भय मानने का जो प्रतिफल है, दीनता में चलने का प्रतिफल और इनाम है, the reward इनाम है of humility and दीनता fear of the और Lord. परमेश्वर के भय का. Again, I'm going to read it. Please notice. फिर से मैं पढ़ूंगी, आप ध्यान दीजिए. It says the reward of humility and the fear of the Lord. दीनता और परमेश्वर के भय को मानने का जो प्रतिफल है, इनाम है. Again, फिर से the reward of humility दीनता का जो इनाम है and the fear of the और प्रभु Lord. का भय. Two things. दो चीजें यहाँ. The reward of humility दीनता का जो इनाम है, and प्रतिफल the है, fear of the और Lord प्रभु का भय are riches, वो है धन, honor, महिमा and life. और जीवन है. Amen. आमीन. There is no curse in between. और इनके बीच में कुछ भी श्राप नहीं है. There is no struggle in between. इसके बीच में कोई भी संघर्ष नहीं. But there is an honor and reward. पर वहाँ आदर है और The प्रतिफल reward है. is riches, और जो प्रतिफल honor है, धन, महिमा and life. और जीवन. amen, आमीन. life of abundant. बहुतायत का जीवन.
light of full of blessing, और जो है आशीषों की भरी हुई ज्योति, to enjoy the life जीवन का आनंद every लेते हुए, day, हर दिन, every situation. हर हालात में. Amen. Amen. Every second of your life, आपके जीवन के हर एक सेकंड you में have riches, आपके पास you धन have है, honor, आदर है, and you have abundant और life. बहुतायत का जीवन है. Amen. Amen. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो. Let's go to Romans 12. आइए हम चलेंगे रोमियो 12वां अध्याय. Romans 12, रोमियो 12वां अध्याय, verse 16. उसकी 16 आयत. It says, be of the same mind toward one another. वो कहता है कि आपस में एक सा मन रखो, Be in unity. एकता में रहो. Amen. Amen. Unity एकता is very important. बहुत ही महत्वपूर्ण है. Amen. आमेन. Father, Son, and the Holy Ghost, पिता, पुत्र और पवित्र they आत्मा, are in unity. वो एकता में हैं. Amen. आमेन. That's why you see the blessings of the Lord in your life. इसी कारण आप अपने जीवन में आशीषों को That's देखते why हैं. you see the answers in इसीलिए your आप अपने life. जीवन में उत्तर को देखते हैं. That's why you see the help of the Lord इसीलिए आप अपने जीवन में प्रभु की सहायता को देखते हैं in your life. आपके जीवन में. Amen. आमेन. Because they are in unity. क्योंकि वो एकता में है. Hallelujah. हालेलुया. The two has to be united in one mind. देखिए, दो को एक मन होना और एकता में होना जरूरी है. No friction, कोई मतभेद नहीं, no disagreement. कोई भी असहमति नहीं. Amen. आमेन. Hallelujah. हालेलुया. Be in unity. एकता में रहे. The Bible says. बाइबल बताती The है. Bible says. बाइबल बताती है. Be of the same mind toward one another. एक दूसरे के प्रति एक सा मन रखें. आपस में एक सा मन. Do not be haughty in your mind. अभिमानी ना हो अपने मन में. Amen. आमेन. In your mind, it's talking about mind. This verse is speaking in about your mind. ये आयत जो है आपके मन के बारे में बात कर रही है. Because this mind is the battlefield. क्योंकि ये मन जो है युद्ध का मैदान है. Amen. आमेन. This mind is the battlefield. और जो मन है वो युद्ध का मैदान है. It keeps reasoning ये तर्क करता रहता है and tries to take you out of the plan of God और ये आपको परमेश्वर की योजना से बाहर ले जाने की कोशिश and करता tries है. to bring in his plan. अपनी योजना में लाने की कोशिश करता है. It's talking about the mind. ये मन के बारे में बात कर रहा है. Be of the same mind with one another एक आपस में एक सा मन रखो. and do not be haughty in mind, और अंग्रेजी की बाइबल के अनुसार मन में अभिमानी ना हो, but associate with the lowly, with the humble. परंतु दीनों के साथ संगति करो, उनके साथ जुड़े रहो. Amen. आमेन. Associate with the humble. दीनों के साथ जुड़े रहो, उनकी Amen. संगति करते रहो. Do not be wise in your own estimation. अपने ही अनुमान में बुद्धिमान न बने. Amen. आमेन. The Bible says, बाइबल बताती है. do not be wise in your own estimation. अपने ही जो है दृष्टि में बुद्धिमान ना हो. Amen. Amen. It says, be humble and associate with humble. The Bible कहता है is कि दीन बनो, giving दीन- us choice. बाइबल हमें चुनाव देती है, दीन बनो और दीनों के साथ संगति करो. Amen. Amen. It's saying, associate with humble वो people. कहता है कि दीन लोगों के साथ जुड़ो. If you think with whom to associate with, और यदि आप सोचते हो कि किसके साथ जुड़ना है, संगति करनी है, Bible says associate with humble people. बाइबल बताती है कि दीन लोगों के साथ संगति करो. Amen. आमेन. Hallelujah. हालेलुया. James 4:7 says, याकूब 4:7 कहती है. James, याकूब. so the Spirit of the Lord is reminding us, परमेश्वर का आत्मा हमें याद करवा रहा है. in this world you and I will get lot of opportunity, इस संसार में आपको और मुझे बहुत सारे मौके मिलेंगे. lot of sparkling and bright worldly opportunity. बहुत ही चमकदार रोशनमय मौके आपको संसार में मिल सकते हैं.
to not be humble, कि आप दीन ना हो, not to be under the mighty कि hand of किसी God. परमेश्वर के सामर्थी हाथ के नीचे ना हो। Amen. आमीन। But the Spirit of the Lord is पर reminding His परमेश्वर church. का आत्मा इस कलीसिया को याद करवा रहा है। James 4:7. याकूब 4:7 It says, humble yourself. वो कहता कि अपने आप को दीन करो, Humble yourself. अपने आप को दीन करो। It says, submit therefore to God and resist the devil and he will flee from you. वो कहता है कि इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। Amen. आमीन। Submit means humble. और अधीन होना मतलब दीन होना। Submit means bringing yourself under. अधीन का मतलब अपने आप को नीचे लेके आना। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Submit means submission. अधीनता मतलब अधीनता। Amen. Hallelujah. Bringing your mind, bringing your will, bringing your body. अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने शरीर को लेके आना। Bringing your plan अपनी योजना को नीचे लेके आना। under the hand of God. परमेश्वर के हाथ के नीचे। That is called submission. इसको कहा जाता है अधीनता। That is called humbleness. इसको कहा जाता है दीनता। With a willing heart. इच्छुक हृदय के साथ। Then you will eat the good of the land. तभी आप उत्तम उत्तम खाएंगे जमीन का। Amen. आमीन। Then you will eat the good of the land. तभी आप उत्तम उत्तम खाएंगे पृथ्वी का। With a willing heart. इच्छुक हृदय के साथ। Humble yourself. दीन करें अपने आप को। Amen. आमीन। Jeremiah 44. Quickly. जल्दी से यिर्मयाह 44। Jeremiah 44. 44 अध्याय। Verse 10 says, 10वीं आयत बताती है, but they have not become contrite even to this day, nor have they feared, nor walked in my law or status. आज के दिन तक उनका मन चूर नहीं हुआ और ना वे डरते हैं। Talking about the Egyptians. मिस्रियों के बारे में बात कर रहा है। Those who are living in sin, जो पाप में रह in the रहे हैं, world, संसार में, in the darkness. अंधकार में। But you and I are not living in this world, पर आप और मैं इस संसार में in the नहीं रहते। system of this world. इस संसार की प्रणाली में नहीं रहते। Amen? Amen. Not living in the sin or darkness of this world. इस संसार के पाप और अंधकार में नहीं रहते। But talking about the people those are still living. और उन लोगों के बारे में बात कर रहा है जो अभी भी जी रहे हैं। It says they have not become contrite even to this day. और वो बताता है कि वो यहाँ तक आज के दिन तक मन में दीन नहीं हुए। Did you hear? क्या आपने सुना? Even to this day. इस दिन तक। Nor have they feared nor walked in my laws. और ना वे डरते हैं और ना मेरी उस व्यवस्था पर चलते हैं। What is the law? व्यवस्था क्या है? The royal law of God. व्यवस्था का जो राज्य Love one another एक दूसरे से प्यार as करो, I have loved you. जैसे मैंने तुझसे Love प्यार God किया। परमेश्वर से with प्यार all your करो, heart, अपने पूरे हृदय से, with all your mind, अपने पूरे मन with से, all your strength. अपने पूरे बल से। Amen. आमीन। Hallelujah. Hallelujah. And love your neighbor अपने पड़ोसी से just प्यार as करो, I have loved you. वैसे ही जैसा मैंने आपसे That प्यार is किया। the law, यही the व्यवस्था, royal law. राज व्यवस्था। And they did not walk in my law, और वो मेरी व्यवस्था पर नहीं चले, nor in my status, ना ही मेरी विधियों पर चले, which I have set before you and before your fathers. जो मैंने तुम्हारे पूर्वजों को और तुमको भी सुनवाई है। That means they rebelled against the word of अर्थ God, है कि उन्होंने परमेश्वर के वचन के विरोध में बलवा किया, against the law of God, परमेश्वर की व्यवस्था के विरोध में बलवा किया, against the status of God. परमेश्वर की विधियों के विरोध में बलवा किया। Amen. आमीन। They rebelled. वो जो है बलवा किए। Amen. आमीन। Against the plan of God. परमेश्वर की योजना के I विरोध was में। listening Pastor Mark last night, पिछली रात मैं पास्टर मार्क को सुन रही थी and he said, और उन्होंने बताया stop rebelling बलवा करना बंद कर दो, against the church, कलीसिया के विरोध against में, your अपने pastor, पासवान के विरोध में, against any event, किसी भी जो है घटना के विरोध में, any program किसी भी प्रोग्राम के विरोध में, of the church, कलीसिया के, because all is anointed by God. क्योंकि ये सब परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त है। You are rebelling against the anointing of God. आप परमेश्वर के अभिषेक के विरोध में बलवा कर रहे हैं।
not rebelling against the person, किसी व्यक्ति के विरोध में जो है against the person, किसी व्यक्ति के विरोध में बलवा नहीं, but against the anointing. पर अभिषेक के विरोध में बलवा। And these people were rebelling और ये लोग बलवई थे because they were living in sin. क्योंकि ये लोग पाप में जी But रहे praise थे। the Lord पर प्रभु की स्तुति for the हो blood of Jesus. यीशु के लहू के We लिए। are washed by the blood. हम यीशु के लहू के We are द्वारा not धुले हुए हैं। living हम उसमें नहीं जी रहे, in the sin. पाप में नहीं जी रहे, We are living in the life. हम जीवन में जी रहे हैं। Amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया। In the life of God. परमेश्वर के जीवन में Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Genesis 16:9 says, उत्पत्ति 16:9 कहती है, when you rebel, जब आप बलवा करते हैं that means you're not humble. इसका अर्थ है कि आप दीन नहीं हैं। When you reject जब आप तिरस्कार करते हैं or go against या God परमेश्वर के विरोध में or चलते the हैं anointing या अभिषेक के or विरोध the में word of God, या परमेश्वर के वचन के or the विरोध plan में of या God, परमेश्वर की योजना के विरोध में, that means you're not humble. इसका मतलब कि आप दीन नहीं हो, You're rebelling. आप बलवई हो। You're not coming under the mighty hand of God. आप परमेश्वर के सामर्थी हाथ के नीचे नहीं आ रहे। Amen. आमेन। Genesis 16 उत्पत्ति 16 अध्याय verse 19. और उसकी 19वीं आयत। 16 verse 1990. Wait a minute. 9 actually. वास्तव में 9 आयत, Verse 9. 9वीं आयत। Then the angel of the Lord said to her, return to your mistress. Talking about Hagar. यहोवा के दूत ने उससे कहा कि अपनी स्वामिनी के पास लौट जा। हागार के बारे, हाजिरा के बारे में बात कर रहा। Let me speak from verse 8. 8वीं आयत से मुझे बोलने दीजिए। It says, he said, the angel of the Lord said प्रभु के दूत ने ऐसा कहा to Hagar, हाजिरा से Sarai maids, who was Sarai's maid, जो सारे की दासी है, हाजिरा, where have you come from and where are you going? तू कहां से आती है और कहां को जाती है? And she said, और उसने कहा, I am fleeing from the presence of my mistress मैं Sarai. अपनी स्वामिनी सारे के सामने से भाग आई हूं। Verse 9 says, 9वीं आयत then कहती the है, angel of the Lord said to her, यहोवा के दूत ने उससे कहा, he said, return to your mistress. अपनी स्वामिनी के पास लौट जा। Amen. आमेन। Return to your Lord. अपने प्रभु के पास लौट Return जा। to the plan of God. प्रभु की योजना के पास लौट जा। Return to your own position. अपने ही उस पदवी में लौट जा Return to the honor that God gave you. जो आदर प्रभु ने तुझे दिया, उसमें लौट जा। Amen. आमेन। Return to that place where God have kept you. जो जगह तूने तेरे लिए परमेश्वर ने रखी, उसमें लौट जा And humble yourself, और अपने आप submit को दीन yourself कर और अपने आप को अधीन कर, to her authority. उसके अधीन, अधिकार के अधीन। Amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया। Return. लौट जा। The angel of the Lord spoke to Hagar. प्रभु का दूत हाजिरा से बात Return to your mistress अपनी Sarai स्वामिनी सारे के पास लौट जा and submit yourself और अपने आप को अधीन कर दे, under the authority of her. उसके अधिकार के नीचे अधीन कर दे। Amen. आमेन, Hallelujah. Hallelujah. And God is giving us opportunity today परमेश्वर आज हमें मौका दे रहा by reminding His word. अपना वचन याद करवाने के द्वारा, Hallelujah. By Hallelujah. speaking through His Spirit. अपने आत्मा के द्वारा बात करने के द्वारा Humble yourself. अपने आप को दीन कीजिए, Bring yourself अपने आप को नीचे ले आए, under the mighty hand of God. परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे। Amen. आमेन, Hallelujah. Hallelujah. And He will exalt you. और वो तुम्हें ऊंचा उठाएगा, He will make you वो prosperous आपको संपन्न करेगा in the proper time. सही समय में। Hallelujah. हालेलुया। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Amen. आमेन। Jesus loves you. यीशु आपसे प्यार करता I है, love you. मैं भी आपसे प्यार And you करता are हूँ। dismissed. आप डिसमिस